Delhi Institute coaching a tragedy, the incident that has claimed lives of three students as we speak. Now, while the rescue operations are still on for over 10 hours now, the eyewitnesses claim that there has been negligence on part of the authorities, specifically naming the councillor, or stating that despite notices having been sent to the councillor that the drainage system is not in place, no action was initiated by the councillor. In fact, the eyewitnesses also claim that they sent notices not once but several times over the last few months to get the drainage system cleaned. However, it was not initiated on part of the Delhi authorities. So, apathy that seems to have claimed lives of three students, three UPSC students for that matter. Let's listen into the eyewitnesses' accounts who claim that it's nothing but negligence that has claimed lives of three UPSC students. Actually, basically, the students are studying in the library in the basement area. Basically, the basement is illegal in Delhi, and MCD is giving licensing to the basement area, and students are writing mains. That's why they are studying in the basement area, and they got struck. Basically, what at what time actually the incident took place? Around 9:15 p.m. The accident happened because water is locked outside the premises of the library. मैं खुद उस लाइब्रेरी में मौजूद था 12 बजे के आसपास. मैं घर गया था, घर पे अपना कोई काम कर रहा था. 7 बजे मुझे इन्फॉर्मेशन मिली कि यहाँ पे पानी भर गया है. सर मैं आया यहाँ पे 7:30 और 9 बजे के आसपास रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हुआ. सर मेरा एक ही सवाल है कि जैसे ये बिल्डिंग है ये मानक के अनुरूप नहीं बनी है और ये एमसीडी के अंदर आता है, तो कुछ कोई बायोमेट्रिक नहीं था. और सर ये टेस्ट सीरीज सेंटर था, उसको ऐसा लाइब्रेरी यूज करते थे. और सर आप जब रास्ता जाओगे ना नीचे उतर के, सर आप पहले राइट लोगे, फिर लेफ्ट लोगे, फिर राइट लोगे, फिर लेफ्ट लोगे, उसके बाद एकदम गहरी सकरी गलियां हैं सर. तो जो बच्चे अंदर थे पैनिक, सर ऐसे ही अगर आप लाइट बंद कर दी जाए उसके अंदर तो आप ऐसे ही पैनिक हो जाओगे. दोस्त उसके अंदर मौजूद था, उसने मुझे बताया है कि 30 से 35 स्टूडेंट के करीब वहाँ पे मौजूद थे उस टाइम पे. अच्छा, कितने लोगों को निकाला गया वहाँ से? उस दौरान मेरा जो दोस्त निकला जब उसके साथ, तो करीब 20-22 स्टूडेंट निकले. और आधे जो एक खबर उड़ी थी ना कि 7 बच्चे फंस गए, तो 7 नहीं थे, वो 10 से 12 के अंदर करीब बच्चे फंसे हुए थे. एमसीडी की तरफ से या लोकल पॉलिटिशियंस की तरफ से कोई नहीं आया है ना. जो जिम्मेदार लोग हैं यहाँ पे, जिनके अंडर में आता है कि ये एमसीडी का जो लाइसेंस देते हैं, जो इसका लाइसेंस देते हैं, एमसीडी लाइसेंस देती है या जो अथॉरिटीज लाइसेंस देती हैं, कोई जवाबदेही यहाँ पे देने नहीं आए. All right, let's go across to Akhil. He's joining us live from the location where the rescue operations have been on for over 7 hours now. Akhil, the eyewitnesses claim that the basement construction in itself is illegal. Take us once again through the claims that are being made by the eyewitnesses. Well, absolutely. If you see, the students are protesting over here at the very spot right now, and we are joined by some of the students, and all of them are the students who are present, are basically part of this area where they study. So here you see their anger is completely justified because they have been constantly claiming that there must be cognizance which must be taken in this regard. But from the MCD side, there was no one who was ready to listen to their cognizance. Here you can see, I'm going to speak to some of the students who are present over here. अच्छा, मुझे ये बताएं, ये जो क्लेम कर रहे हैं ऐसा कि पुलिस कह रही है कि 3 लोगों की डेथ्स हुई है, आप कह रहे हैं कि बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो अभी भी मिसिंग हैं, क्या है मामला? देखिए, कल शाम को जो लाइब्रेरी था वो पूरा पानी से भर गया था. यहाँ तक कि लाइब्रेरी के ऊपर जो ये जो ग्राउंड फ्लोर है वहाँ पर 3-4 फीट तक पानी भरी हुई थी. और रात को 11 बजे IPS सर आए, उन्होंने बोला सिर्फ 3 डेथ हुई है. ठीक है, उसके बाद वो 1 बजे आए, उन्होंने कहा 3 डेथ हुई है. और यहाँ जो कुछ स्टूडेंट जो पीछे गए थे, उन्होंने अपनी आंखों से देखा है कि डेड बॉडीज भर के ले जाई जा रही थी पीछे की तरफ से, क्योंकि स्टूडेंट यहाँ खड़े थे. हम लोग कल रात को 10:30-11 बजे से यहाँ खड़े हैं, यहाँ से हिले नहीं है, कोई मीडिया वाले नहीं है. Let's clarify it. Last night we were here, entire night we were here. I personally spoke to the DCP Central, Mr. Harshvardhan. He claimed that there were 3 deaths, right? You are suggesting that the death toll must rise, right? This is what you are claiming. I would like to know it from you. How many deaths toll were there? What's the death count? सर एग्जैक्टली तो बता नहीं सकते डेथ काउंट कितना है, क्योंकि बहुत सारी डेड बॉडीज दिखाई गई हमें. पुलिस वैन में बॉडीज लेके जा रहे थे, एम्बुलेंस वो वहाँ पे 8 एम्बुलेंस थी. कितने स्टूडेंट्स मिसिंग हैं जिनसे आप नहीं मिल पाए, अपने दोस्तों से नहीं मिल पाए? सर अप्रॉक्स 30 to 35 स्टूडेंट्स मिसिंग है. और उस सिचुएशन के अंदर कितने स्टूडेंट्स मौजूद थे? लगभग 30 to 35 स्टूडेंट्स मौजूद थे अंदर बेसमेंट में. कितने लोगों को निकाला गया उसके बाद? निकाला किसी को नहीं गया, 3 बॉडीज निकाली गई, 2 लड़के और 1 लड़की, और वो भी डेड थी। और इतना ही बताया गया जो कि हमें पता है कि उससे ज़्यादा बॉडीज थी।
उससे ज़्यादा ये बताया, हम प्रोजेक्शन तो नहीं कर सकते इस तरीके से ना। आप एक कंजेक्चर कर रहे हैं, मुझे गेस नहीं करना। क्या वीडियोस हैं आपके उसके पास? अच्छा, मैं और भी स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे, उनसे जानना चाहूँगा कि आप कहने के पीछे भी एक रास्ता था, उस तरफ से जो है कुछ स्टूडेंट्स को क्या पूरी कहानी क्या है? सर देखिए, जब हम आए अप्रॉक्स 6 से 7 बजे की बात है, ये 8 बजे से स्टार्ट हो गया था, तो पूरा सील कर दिया गया था। और अगर आप देख सकते हो तो कल रात से अभी तक पानी निकाला जा रहा है। और ये शर्म की बात ये है कि ये बिल्डिंग 1 साल पहले बना है, और ये लाइन से जो 2-3 बिल्डिंग बना है, जो कोचिंग वाले बना रहे हैं, अगर उसमें ऐसा हालात हो रहा है, वो पूरा फिर ऐसा क्यों लापरवाही हुआ? कोई बोल रहा है सीवेज टूटा, कोई बोला पानी आ रहा है। और इसमें ये देखिए कि हम कल रात से पुलिस से कांटेक्ट कर रहे थे। हाईएस्ट अथॉरिटी ऑफ द पुलिस इज सेइंग जस्ट वी हैव फाउंड 3 बॉडी। सर, और ये दिल्ली का हर बार का किस्सा है, ठीक है? दिस इज़ नॉट द फर्स्ट टाइम, हर बार यही चीज़ होती है। तो इन्होंने प्रिकॉशंस क्यों नहीं लिए? क्यों नहीं लिए? उनकी गलती की वजह से अप्रॉक्स 20 बच्चे मारे गए। और पुलिस कल रात से हम लोग को मिस इन्फॉर्म कर रही थी, कह रही थी दो फीमेल्स मारी गई, 1 मेल मारा गया। देन सेकंड एसपी आते हैं, कहते हैं 2 मेल मारे गए, 1 फीमेल मारी। मीडिया कवरेज से पता चलता है 7 लोग मारे गए। तो हम लोग का मजाक बनाया जा रहा है इधर। आपके उस राव सर हमें बताइए, हम लोग रात से सुन रहे हैं, ठीक है? इसलिए हम लोगों को बोलने दीजिए। और सर इधर हर बार की ये चीज़ दिक्कत है बहुत। इससे पहले पटेल नगर में ये सेम कैजुअलिटी हुई, तब आप लोगों ने फोकस नहीं किया। शायद आप लोग को ये लगता है क्योंकि एक जान गई, तब आप लोगों ने don't allow you the platform to give us a monologue. We covered that Patel Nagar story where a student named Nilesh Rai was electrocuted on July 23rd. I was there the entire day. We covered it. So if you see, viewers, it's a case of civic apathy. Right now, we just spoke to the students. Some of the students over here, they are claiming that we have been constantly complaining about such kind of students in the recent past in old Rajendra Nagar area as well. And apart from that, if you see, just at a distance of 3.5 kilometer from this old Rajendra Nagar area, that is which is known as Patel Nagar, what happened on July 23rd, there was another incident took place in which another UPSC aspirant, Mr. Nilesh Rai, who was just coming from his library after studying, he got electrocuted and then he lost his life in that unfortunate incident. Akhil, stay with us. So, eyewitnesses clearly stating that this is nothing but negligence. Given that there were notices sent to the MCT, despite that no action was taken.